तो कर ला एक कहना ही पैना सर एक मिनट थोड़ा सर हाँ जी आओ जी आओ जी आओ हाँ जी अभी उधर बैठ के बोले थोड़ा रास्ते प्रणाम की प्रणाम आप मेरी पिक ले मेरी जगह कोई नहीं ला सकता आगे सुन के देखो आओ जी सॉरी सर मेरे को सॉरी थे इधर अंकल जी हेलो, जैसे आपने सबने देखा कि आज के जो हमारे मुख्य अतिथि और स्पीकर आनंद मूर्ति गुरुमा जी आ चुके हैं। मैं सभी से निवेदन करूंगा जो बाहर भी हैं उनको आप बाई टर्न उपकार जी छड़ इन्होंने आ दोगे सर साइड पे हो जाओ सर प्लीज वन बाय वन इधरों दी अंदर हो जी अच्छा नहीं कर देने राजू आओ मैं किसके द्वारा करूँ बक्कर साहब आओ आगे ने 8 महीने 8 दिन में 8 महीने 8 दिन में 8 तारीख तक अपने गोल्स अचीव किए, उनको हम सम्मानित करेंगे। और उसके बाद जिसकी आपको सभी को इंतज़ार है, इलेक्शन रिजल्ट्स। जो प्रेसिडेंट्स वोटिंग वाले हैं, जो बैलेटिंग कर रहे हैं, वो साइड के कमरे में बाहर से हैं, वो बैलेटिंग अपनी करके और रूम में आ जाए। सो नो आई रिक्वेस्ट, बाकी का पार्ट 2 में कर लेंगे। दलबीर मक्कड़ जी अब सभी से माफी मांग लो। सीट से दिया नीचे दिया जाओ
जो वो बोल रहे हैं वो हमें पूरा क्लियर करिए। कैमरे उठ रहे बैठ कर रहा है यार फ्रंट में ना के हम लोग पीछे हट जाएंगे, अभी कैमरा पीछे हट जाएंगे, कैमरा हट जाएंगे, पीछे हो जाएंगे। हाँ जी सर। साइड देना I again request my all delegates to please ask the persons taking breakfast outside to please नसीर come बाजी, in. नसीर बाजी अगे ना हो ना। इस हाल की कोई सीट खाली नहीं बचनी चाहिए। जिन्होंने इलेक्शन में बैटिंग कर दिया वो उनको रिक्वेस्ट है। बंद कर भी देना कौन जो बोलेगा। In the meantime, I would request Rotarian अमनदीप सेखों, ये गुरुजी की इंट्रोडक्शन देगी, मैं इनकी इंट्रोडक्शन देता हूँ कि फॉर द रेडी रेफरेंस शी इज ए स्कूल मेट ऑफ अवर गुरु माँ। तो ड्यूटी इन्होंने बहुत ऑनरेबली और बड़े एलिगेंटली So I quickly. Madam Aman. Good morning, everyone. Breakfast is over, voting time is over. Let's now enjoy some spirituality and look within. पढ़ इल्म हजार किताबां कदे अपने आप नूं पढ़िया ही नहीं जा वड़दा मंदिर मसीती कदे मन अपने विच वड़िया नहीं एवें लड़दा है शैतान दे नाल बंदिया कभी नफ्स अपने नाल लड़िया नहीं आखे पीर बुल्ले शाह आसमानी पढ़ना है जेड़ा मन विच वसदा है उन्होंने फड़िया है। That was 18th century mystic Baba Bulle Shah, father of Punjabi enlightenment. Today we have a modern day, liberal-minded, self-realized Anand Murti Guru Ma,
a revolutionary spiritual leader committed to kindle the fire for knowing the truth that lies dormant in every individual. While I was going through the Amrit Kom circular, I came across two words for her. One was avant-garde, the other was metaphysist. Metaphysist, I'm a teacher. Metaphysist, we all know, a person who studies and understands the fundamental nature of reality. But avant-garde is a French word, so I thought I didn't know the meaning, so I thought I'll share it with you. It's people or ideas that are ahead of their time. So she is avant-garde metaphysicist. And friends, I have had the privilege of being this avant-garde metaphysicist's class fellow at Sacred Heart, Amritsar, and bear testimony to the fact that Guru Ma embarked upon the inner voyage at a very early age, in her tweens for all I know. She is a living example of human beings' potential to become enlightened and attain higher self. Her transformative journey from being one of us in school to becoming a spiritual master is truly inspirational. Sharing her knowledge with masses to find our true calling that we all search for through simple self-reflection. She says, be the light you seek, be the bliss you seek, be the truth you seek, be who you really are. Such simple philosophy, very profound also. Anandamurti Guru Ma also has a huge collection of literary and musical compositions to her credit. Mission Shakti is a prominent movement spearheaded by her to empower girls. The core belief of Shakti is to change the misguided mindset towards a girl child and women in general. Friends, it's now time to open your mind, time to ascend higher, time to tune to Guru Ma, Anandamurti Guru Ma. Please welcome her with a warm round of applause. Everyone who is present at the moment, सबने बड़ी प्यार भरी सत श्री अकाल, नमस्ते, जय श्री राम, जो पसंद आए ले लो, ना पसंद आए थोड़ी मर्जी सानू की। Very happy to be here amongst all the esteemed participants, Rotarians, and just giving a small brief history because sometimes history brings nice memories back. And when I was asked that why have I agreed to be in this particular convention, I said because at one time I have been helping to run a fete conducted by the Rotary, and I was the one who was a participant over there in my childhood, helping Mr. Parminder Singh, Dr. Parminder Singh Grover and his all friends, and it was like a fun to be there and be the part of the whole fun and frolic, but being done for a cause, some good cause. दूसरी बात यह है कि जिंदगी में जब कोई कहता है कि क्या मिरेकल होता है या नहीं होता है, क्योंकि इस पूरी कन्वेंशन को इस एक वर्ड के साथ जोड़ा गया है, एक वर्ड अमृत कुंभ, एक वर्ड मिरेकल. So I would like to say that कभी क्या हमेशा ही लोगों के अंदर एक हसरत होती है कि मैं कोई चमत्कार जिंदगी में देखूं. ऐसा नहीं कि सिर्फ हिंदुस्तान में, मैं पूरी दुनिया घूमी हूँ,
इसलिए मैं कह सकती हूँ कि पूरी दुनिया में काला, गोरा, पीला कोई स्किन टोन हो, स्पेनिश, यूरोपियन, इंग्लिश और नॉर्वेजियन और फिनिश और डच या उर्दू या अरबी बोलने वाला हो कोई, डजंट मैटर्स, बट वन थिंग इज वेरी सिमिलर कि सब लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होते हैं, बहुत ज़्यादा एंटिसिपेट करते हैं कि वो ज़िंदगी में कोई चमत्कार देखें। क्योंकि इंसान जब अपनी ज़िंदगी को जी रहा है तब उस समय पर उसको बहुत सी चैलेंजेस, मुश्किलें, तकलीफ़ें, ups and downs are going to be part of everyone's life. If I ask you to write your own autobiography, then I think so everybody would have a complete masala book fit for a Bollywood film. सबकी स्टोरी ऐसी ही हो, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, लेकिन उन सारी जिंदगी की इस चाल में कुछ ऐसे वक्त आ जाते हैं जब थोड़ी तकलीफ बढ़ जाती है। मैं एक शेर पढ़ रही थी कि जिंदगी में कोई दर्द न था और जिंदगी में कोई हमदर्द न था। जिंदगी में कोई दर्द न था, जिंदगी में कोई हमदर्द न था, फिर एक हमदर्द मिला और सारा दर्द उसी से मिला। जिंदगी में कोई दर्द न था, जिंदगी में कोई हमदर्द न था और फिर एक हमदर्द मिला और फिर सारा दर्द उसी से मिला। तो जिंदगी में ऐसे हमदर्द आपके भी बहुत से रहे होंगे और दुनिया में हर इंसान के जब ज्यादा तकलीफ आती है तो वो सोचता है कि काश कोई चमत्कार हो जाए, काश कोई चमत्कार हो जाए। And in a hope of a miracle, India and including all the other so-called religious countries, one thing which sells the most is, please excuse my words, although I come from a very strong religious and spiritual background, but I can still dare to say that, सबसे ज़्यादा अगर कोई दुकान चलती है तो वो भगवान के नाम की दुकान चलती है। आप एक दुकान खोलिए तो सही, उसे आप मंदिर कह लो, गुरुद्वारा कह लो, उससे आप किसी फकीर की दरगाह कह लो, आप उसको गिरजा कह लो, आप उसको कुछ नाम दे दो, लेकिन एक चीज कॉमन है कि यहाँ सब जगहों पर एक उम्मीद बेची जाती है और चढ़ावा भगत खुद ही चढ़ा देते हैं और वो इसी उम्मीद में करते हैं कि एक चमत्कार तो मेरी जिंदगी में हो जाना चाहिए। हसरतें हैं बहुत सी, हसरतें हैं बहुत सी, ख्वाहिशें हैं बहुत सी, हर ख्वाहिश, हर हसरत पर हमने हर बार एक आह ली कि एक आह में कई हजार बार आह ली। सोए आहों से भरा हुआ इंसान हमेशा चमत्कार ढूंढता है, कभी ज्योतिष, कभी मंदिर, कभी कोई बाबा, कभी कोई गुरुद्वारा, कभी कोई तांत्रिक, कभी कोई मांत्रिक, कभी कोई टैरो रीडर, कभी कोई ऑरा रीडर, कभी कभी as I always love to say in this slang and this chakras readers। यूरोप में खूब चलते हैं तो चक्रास रीडर, दिल सेट योर चक्रास, एक चक्र जब खुल गया तो तेरी जिंदगी में चमत्कार हो जाएगा। अफसोस इस बात की है कि किसी को निस्बत अगर ना मिली हो किसी मुर्शद की तो उसकी अकल की आंखें हमेशा बंद होती हैं और जिसकी अकल की आंखें बंद होती है फिर उसको बेवकूफ बनाया नहीं जाता है, माफ करिएगा वो बेवकूफ होता है, बनाया उसको जाता है जो ना हो। तो अपनी इस अकल के आंखों से थोड़ी पट्टी हटाने की जरूरत है और मैं कोशिश करूंगी कि आप मेरी बात को उतनी गहराई से समझ पाए जितनी गहराई से मैं बोलूंगी, क्योंकि कभी कभी बात वो असर रखती है जो दिल से निकलती है, बात वो असर रखती है जो दिल से निकलती है। पंख शायद न हो मगर परवाज रखती है। तो ये मेरे पंख हो ना हो पर शब्दों की ये जो उड़ान अब उड़ेगी तो थोड़ा उस उड़ान में आप भी शामिल हो जाइएगा। जब कोई ये कहता है चमत्कार क्या होता है या नहीं होता है तो मैं कहूँगी बिल्कुल होता है। और अजब चीज ये है कि
उस चमत्कार को तुम अपने आंखों के सामने घटित होते देखते हो लेकिन फिर भी पहचानते नहीं। May I ask how many doctors sitting here? Can you raise your hands, please? Just a pinch. Very small pinch. Anyhow, I was hoping more doctors would be here. But वो कहीं सेवा कर रहे होंगे, कोई बात नहीं. It's okay. When the conception happens, meaning a male semen joins the egg of a woman, and this conception happens in a uterus, that amount of semen won't be more than a spoon. From a spoonful of a liquid, 6 फुट का इंसान बन जाता है. इससे बड़ा कोई चमत्कार हो सकता है? एक चम्मच में जितना आ जाए, क्योंकि जो the first week of the conception, no ultrasound can still catch the picture of that zygote. There is no way, no 4D is still ready and prepared to do that. It's only after a few weeks when they can, through the blood test and through others, can say, okay, now this lady is pregnant and 9 महीने 8 महीने में ये चमत्कार पैदा हो जाता है. जो था वो एक रक्त की बूंद, और फिर वो हंसता, जागता, बोलता, सोचता, समझता, विचार करता इंसान बन जाता है. तो हुजूर आप खुद एक चमत्कार हैं. और कभी अपने आप की होंद को पहचानिए तो सही, और शीशे में आज के बाद जब भी अपनी शक्ल देखिए तो अपना नाम लेके कहना तो खुद एक चमत्कार है. अपना दर्शन करके ईश्वर का दर्शन अपने इसी चेहरे में कर लीजिए, क्योंकि आप ईश्वर की कृति हैं. ईश्वर आप में है, और आपका शरीर जो है वो प्रकृति का एक सबसे बड़ा चमत्कार है कि जो एक रक्त की बूंद थी, जो एक वीर्य की बूंद थी, जो मात्र किसी माइक्रोस्कोप से देखा जा सकता था, माँ के उंगली में पड़ा हुआ वो एग, और जब वो फर्टिलाइज हो जाता है और फिर जो उसकी ग्रोथ होती है, और फिर कभी कभी एक बड़े विद्वान आदमी के घर एक मूर्ख पैदा हो जाता है, और एक बहुत दिलदार आदमी के घर एक कंजूस पैदा हो जाता है. तो फिर समझना पड़ता है कि शरीर जरूर इसके माँ बाप के अंश से आया है, लेकिन अपनी अकल और अपनी समझ और अपनी एट्रीब्यूट्स ये वो पुरानी लेकर के ही आया है. और ये एक ऐसा सिस्टम है ट्रांसपोर्टेशन का कि आज भी स्टार ट्रेक अगर याद हो तो कोई 30 साल पहले एक शो आया करता था हॉलीवुड का बना हुआ, एंड अ ग्रेट स्प्रिंगस्टीन डायरेक्टर हैड मेड दैट. और उसमें वो टेलीपोर्टेशन दिखाते हैं कि कैप्टन स्पार्क बीम में आप और वो बंदा बीम होकर के दूसरे प्लैनेट पर या वापस स्टारशिप पे आ जाता है. सबने कहा कि ये तो बड़ा विज्ञान का अजब चमत्कार है, पर आप ये सोचिए कि पूर्व जन्म की सारी स्मृतियां, सारे संस्कार, सारी मेमोरीज आपकी टेलीपोर्ट ही क्या वापस फिर एक नए शरीर में भी फिट हो जाती है. इससे बड़ा और चमत्कार क्या हो सकता है कि आपके जो कई बार आप कहते हैं कि मेरी ये इच्छा है, मेरी ये ख्वाहिश है, कई बार वो आपकी इस जन्म की होती भी नहीं. पुरानी अधूरी लिए हुए चलते हैं, तभी तो कारवा जन्मों के जुड़ते जाते हैं, नए नए जन्म होते चले जाते हैं. सो अपनी उन अधूरी इच्छाओं को पूरा करने का मौका ये कुदरत फिर से हमको दे देती है. ले बेटा एक और अपॉर्चुनिटी ले, एक और जिंदगी तुझको हम देते हैं. ये शक्ति तुझ पर नाजिल करते हैं कि जिससे तू फिर से अपनी जिंदगी का आर्किटेक्ट बन सकता है. तो स्कूल में जाता हुआ बच्चा, वो ABCD पढ़ता हुआ बच्चा, वो उड़ा एड़ा सस्सा हा पढ़ने वाला बच्चा, वो का ख ग पढ़ने वाला बच्चा, फिर अपने शिक्षण, अपने स्कूल, अपने इंस्टीट्यूशन, अपने माँ बाप के सहयोग से फिर एक दिन एक साइंटिस्ट, एक एस्ट्रोफिजिसिस्ट, एक डॉक्टर, एक टीचर, एक शायर, एक एक्टर, एक सिंगर, एक म्यूजिशियन बन जाता है.
क्या ये अपने आप में एक चमत्कार नहीं है कि जो अपने आप करवट भी नहीं ले सकता था बच्चा, वो पूरी दुनिया को करवट लेने को मजबूर कर सकता है। तो ये अपने आप में एक जिसे हम कहेंगे लासानी एग्जाम्पल है, जिसके आगे, जिसके बाद शायद फिर किसी चमत्कार को देखने की इच्छा। वैसे मैं कल ही किसी से कह रही थी कि एक I have great respect for astrology and it's a science and it's not meant to do suggestions of you do this remedy and this will happen, this will change, or do this remedy and this will happen. Just taking a little detour onto my subject, क्योंकि चमत्कार की बात हो रही है ना, तो इसलिए एक आदमी पंडित जी के जाता है, वो कहता है कि बताइए मेरी पत्नी के बेटी होगा कि बेटा होगा, क्या होगा बताइए। तो उन्होंने कागज में कुछ लिखा और कहा इसको बस फोल्ड करके रख ले अपनी तिजोरी में, जब डिलीवरी हो जाए तो खोल के देख लेना, जो मैं लिख रहा हूँ वही होगा, पर उससे पहले नहीं खोलना। ओके, ले गया, उसने रख लिया। फिर उसके घर लड़की हो गई, फिर उसने वो पर्ची खोली और वो पर्ची पे लिखा था लड़का ना लड़की। ये क्या मतलब है? पंडित कहते यही तो कहा, लड़का ना लड़की। और अगर लड़का हो जाता तो पढ़ा जाता लड़का ना लड़की। एक व्यक्ति दावा करता है मैं तुम्हारा भविष्य बता सकता हूं, शायद बता सकता हूं, पर मैं ये जानती हूं कि भविष्य बताना और उसमें जो अंदाज और जो साइकोलॉजिकल गेम चलती है उसके पीछे भी तो फिर वही भूख है ना कि चमत्कार कुछ हो जाए, कि क्या होगा, मैं क्या करूं कि मेरी जिंदगी में ये अच्छा हो जाए, ये जॉब हो जाए, ये प्रमोशन हो जाए, ये शादी हो जाए, राइट, PR हो जाए, एंट्री मिल जाए कनाडा की, जहाज भर के वापस आ रहे हैं। जरा सोच समझ के कार्य करिएगा। जब हमारी सोच महदूद हो जाती है किन्हीं चीजों तक, जब हमारी सोच को पंख नहीं दिए जाते हैं, तब हम इतने कमजोर और काहिल और एक्सक्यूज माय वर्ड इतने जाहिल हो जाते हैं कि अपने हाथ की लकीरें फिर दूसरों को दिखाते फिरते तू बता कि मेरी जिंदगी में होगा क्या। और मैं ये कहती हूँ कि काश किसी कामल मुर्शद के साथ तुम बैठे होते, किसी विद्वान, किसी महात्मा की संगति तुमने की होती, तो वो तुमको ये सिखा देता। अगर आपको ये निस्बत मिली होती और आपने संगति की होती और गीता के ये श्लोक समझे होते, तो कृष्ण कहते हैं तू जो चाहे वो लकीरें अपने हाथों में बना सकता है, तो जो चाहे वो अपना भविष्य खुद खड़ा कर सकता है। और सवाल ये है कि कर्म करने की या एफर्ट करने की या एक्टिविटी करने की जो सोच, जो समझ, जो अकल, जो जुर्रत होनी चाहिए, वो कहाँ से आएगी? Excuse my again words, I'm going to maybe ruffle some feathers, and that is, स्कूलों में तुम्हारे जो पढ़ाइयाँ चल रही हैं वो बहुत सीमित हैं, वो बहुत गहरी सोच नहीं दे पाती हैं। वो एक अच्छा क्लर्क या मे बी एक अच्छा ब्यूरोक्रेट या मे बी टू डू अ फंक्शनल सोसाइटियल वर्क तो वो कर सकता है, लेकिन उसकी सोच जो है वो बहुत बंद रहती है, वो खुलती नहीं। इसलिए वो निर्भर हो जाता है किसी दूसरे के ऊपर कि मार्क्स इतने आएंगे तो मेरा ये होगा, मार्क्स कम आ गए तो एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन नहीं होगा तो MBS नहीं होगी, तो MD नहीं होगा तो सर्जन नहीं होगा। तो नंबरों की गेम हो जाती है और वो जिसमें आप लोग दूसरों पर निर्भर हो जाते हैं। लेकिन इसके उलट अगर हम शिक्षा के प्रति, जैसे बच्चे के लिए ना बड़ा मुश्किल होता है कुछ पढ़ना, फिर याद करना, फिर इम्तिहान देना, PhD के हो या मास्टर्स हो या बैचलर्स की डिग्री हो। लेकिन यही बच्चा जब किसी फिल्म को देखने जाता, फिल्म में 4-6 गाने होंगे, कुछ डांस सीक्वेंस होंगी, कुछ डायलॉग्स होंगे, कुछ स्टोरी होगी। वो फिल्म देख करके जब वो पहली बार देखेगा और फिर जब वो बाहर आया वो उससे पूछे कि तुमने क्या देखा है। आपको क्या लगता है जब शोले देखी थी तो स्टोरी भूल गई थी कि सब याद रही थी?
आपको क्या याद रहा जब आपने लेटेस्ट कोई भी फिल्म देखी हो, इंग्लिश या हिंदी या पंजाबी, तो जब आपने वो फिल्म देखी तो न केवल आपको उसके डायलॉग याद रहे, कहानी याद रही, किरदार याद रहे, बल्कि कई बार कुछ गीत ऐसे याद रहे थे जिसको गुनगुनाते हुए लोग सिनेमा हॉल से बाहर आते। ऐसा क्यों? क्योंकि सिनेमा देखते समय पर कोई जोर जबरदस्ती नहीं थी, आपने चुना था, आपने चुना था, मैं ये देखना चाहता हूँ। क्यों? उस स्टार से, उस एक्टर से, उस प्रोड्यूसर से, उस डायरेक्टर से लगाव था, फैन फॉलोइंग थी, मोहब्बत थी। इसलिए क्या आपके स्टूडेंट लाइफ में आपको आपकी किताबों से, सब्जेक्ट मैटर से, करिकुलम से, टीचर से मोहब्बत थी? अगर मोहब्बत होती तो जब 3 घंटे की फिल्म एक ही बार में याद हो गई तो फिर सब्जेक्ट मैटर भी सारे याद हो जाने चाहिए थे। और अगर याद रह जाते पर उसके अंदर एक, जिसे मैं कहती हूँ, एक ट्विस्ट लाने की जरूरत। और वो ट्विस्ट ये है कि हर बच्चे को अगर हम न्यूट्रिशन सिखाने लग जाए, जो नहीं सिखाई जाती, क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, the dangers of eating refined oils, the dangers of eating fried, the dangers of eating the sugar, अगर ये सिखाई जा रही होती, क्योंकि हेल्थ, स्वास्थ्य जिंदगी को सुख से भर देता है। तो जब स्वास्थ्य बिगड़ जाए तो जिंदगी बहुत बड़े दुख में आ जाती है, बहुत बड़ी तकलीफ में आ जाती है। काश हम ये सिखा पाते कि तुम्हारा स्वास्थ्य की कुंजी तुम्हारे हाथ में है, कि अगर तुम जंक खाते हो तो शरीर भी जंक ही हो जाएगा, और अगर तुम ऑर्गेनिक और फ्रेश और जूसी एंड लाइफ गिविंग कुछ खाते हो तो तेरी जिंदगी, तेरे शरीर में उसकी एक्सप्रेशन वही आ जाएगी, मोर लाइफ, मोर जूस, मोर एनर्जी इन योर बॉडी। एंड ऑफ कोर्स फिर उदासी नहीं और दुख नहीं और कमजोरी नहीं और लैक ऑफ एनर्जी नहीं और दिन में सोने की जरूरत भी नहीं, और बहुत एक्टिव हो सकता है। कंपनियों ने कहा अच्छा इनको एनर्जी बूस्टर चाहिए, तो उन्होंने एनर्जी बूस्टर नाम से कितने सारे ड्रिंक्स बना दिए। मैं नाम नहीं ले सकती क्योंकि आजकल लड़ाई हो जाती है, वो केस कर देते, आपने हमारा नाम कैसे ले लिया। सो आप ज्यादा सियाने हैं, जिसमें भी 12 से 15 चम्मच चीनी हो, जिसमें 3 से 4 केमिकल जुड़े हुए हो, वो जंक होता है। वो फिर चाहे कोई क्रिकेटर कहे मैं पीता हूं, जो कि वो नहीं पीता है एक्चुअल में, और चाहे कोई फिल्म एक्ट्रेस होए कि मैं ये ड्रिंक बड़ा स्वाद से पीती हूँ, और वैसे वो चाय भी फीकी पीती है, ये चाय भी फीकी पीती है, लेकिन एक बहुत शुगरी ड्रिंक की एडवर्टीजमेंट वो कर देती है, जिसको बच्चे देखते हैं, जवान देखते हैं, और वो बच्चे और जवान पीते हैं, और फिर जब तक वो 25 या 30 तक आते हैं तो डायबिटीज 2 हो जाते हैं। फिर वो कहते हैं आप क्या कर, बोले अब दवाई खाओ। और मैं ये कहती हूँ कि काश तेरे स्कूल ने, तेरी माँ ने तुझको ये सिखाया होता कि जी करे तो एक संतरा छील के खा लेना, फाइबर ज्यादा मिल जाएगा और तेरा शरीर भी अच्छा रहेगा, और ये शुगरी ड्रिंक ना पियो। भले एक्टर, कोई क्रिकेटर, भले कोई ऐसा कह रहा हो तो उसके कहने पर विश्वास मत करो। तो आज जो एक बहुत बड़ी समस्या बीमारियों की जो शरीरों में दिखती हैं, शरीर की अगर मैं बात करूं, पीपल आर नॉट वेरी हेल्दी। मैंने एक योग निद्रा की वर्कशॉप कराई थी जस्ट फॉर डॉक्टर्स ओनली। थोड़ा उनसे लगाव ज्यादा है क्योंकि उनके पास सैकड़ों लोगों ने आना है, तो उनके लिए एक हमने वर्कशॉप जस्ट फॉर द मेडिकल प्रोफेशनल्स कराई थी। तो उसमें मैंने एक फॉर्म दिया सबको कि ये प्लीज ये फॉर्म भरिए और आइए। ICMR हैदराबाद से हमने योग निद्रा के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल कराया था, और रिजल्ट्स ये आए जो कि इंटरनेशनल मेडिकल जर्नल में छप चुके हैं कि योग निद्रा करने पर आपके जो थायरॉक्सिन की प्रोडक्शन है वो ज्यादा बेटर होती है, कोर्टिसोल कम होता है, आपका सेरोटोनिन लेवल अच्छा होता है, आपके जो स्ट्रेस मार्कर्स जिसे JAS स्केल पे हम नापते हैं
उसमें भी वो कम हो जाता है। एंड द बिगेस्ट चैलेंज व्हिच दीस डेज एवरीवन इज फेसिंग इज नींद अच्छी नहीं आती है या नींद के लिए कोई गोली खाते हैं, क्योंकि तनाव भी है और शरीर भी थके हुए हैं और न्यूट्रिशंस की डेफिशिएंसी भी है। तो योग निद्रा की वो प्रैक्टिस करने पर, 40-minute प्रैक्टिस करने पर इन 6 month पीरियड ICMR हैदराबाद gave the report कि आपके ये सारे मार्कर्स ठीक हो जाते हैं। आपके थायराइड ग्लैंड ठीक काम करता है, आपका पेनक्रियास ठीक काम करता है, आपकी लिवर फंक्शनिंग भी बेटर होती है, बिकॉज द बॉडी इज रेस्टफुल एंड यू आर नॉट ईटिंग कंपल्सिवली बिकॉज यू आर अपसेट इनसाइड। जब आपका मन दुखी होता है तो फिर जलेबी खा के मजा, अदरवाइज कोई मजा नहीं। जब आपका मन उदास होता है तो कुछ चटपटा और फिर फॉलोड बाय चाय और कॉफी लेने पर एक बूस्ट मिल जाता है, एक पिकअप हो जाता है जो अच्छा लगता है। अब मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि देयर इज अ मिरेकल व्हिच योर बॉडी कैन डू टू इटसेल्फ एंड बाय योरसेल्फ, एंड दैट इज आपका मन पसंदीदा कोई जो भी गाना हो, फिल्मी हो गैर फिल्मी हो, वो गाना लगाइए और खूब डांस करिए उस पर। ये ख्याल न करिए कि नाचना नहीं आता है या हम माइकल जैक्सन के कोई रिश्तेदार भी नहीं लगते हैं, लेकिन फिर भी चाहे उछल कूदी कर लीजिए, लेकिन कुछ नाचिए। और अगर कोई पैथोलॉजिस्ट, बायोकेमिस्ट वहाँ यहाँ मौजूद हो तो आपके आधे एक घंटे डांस के पहले का एक ब्लड सैंपल ले ले और आधे घंटे बाद नाचने के बाद का एक ब्लड सैंपल ले ले, ये भी कंपेयर करके देख लीजिएगा। द ब्यूटी इज you will be having lot of endorphins inside and you will be having beautiful adrenaline inside, which is like endorphin is a happy hormone. आप खुश हैं, अपने आप से खुश हैं, तो क्या ये मिरेकल तुम तुम्हारे लिए कर सकते हो कि खुशी के लिए तुम्हें घर से बाहर ना निकलना पड़े, खुशी के लिए किसी की गुलामी ना करनी पड़े, इमोशनल से बाहर से कोई जंजीरें नहीं बनी, मन से बन जाती है। जब खुशी के लिए and for good time we are dependent on a person, an activity, golf की गेम, टेनिस की गेम, क्रिकेट की गेम, बैडमिंटन की गेम खेलते तो मजा आता है, नहीं खेले कुछ नहीं। ये 4 लोग बुलाएं और तारीफ करें और वाह वाह करें तो मजा आता है। ये बहुत अच्छा खाना खाएं, बहुत अच्छा हमारे मन पसंदीदा डिशेस हमको मिले तो हमारे मन को अगर मजा आता है। तो अगर ये कंडीशंस आपके ऊपर एप्लीकेबल है, then please straighten up your back and listen to my words. You don't have any miracle in your life. The miracle is when you are not dependent emotionally to feel good, to feel happy, when you don't need anyone or anything, and you can be the happiest person because you know how to manage your own mind and you know how to manage your own hormones, when you know how to manage your own body. जब हम अपने शरीर और अपने मन का चार्ज अपने हाथ में ले सके, जब हम जरा से किसी ने बात कही तो दुखी हो गए और जरा से किसी ने नमस्ते भी बोली तो दुखी हो गए, या हमने कोई पोस्ट चाही नहीं मिली तो दुखी हो गए, या जहाँ शादी करनी चाहिए नहीं हो पाई तो दुखी हो गए। वैसे जहाँ चाहिए और हो गई उनसे भी पूछ लेना वो भी कितने सुखी हैं। वो बात अलग है कि हमाम में सब नंगे हैं इसलिए सब कहते बहुत बढ़िया चल रही है, तो अच्छी बात है बढ़िया चल रही है, लेकिन तुम्हारा साक्षी या तो तुम हो, कहते ना मेरे हाल जा मैं जाना जा मेरा रब जाने, डाटी दुनिया की जाने। सो ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ ਝੂਠ बोल सकते हैं, ਦੂਜਿਆਂ ਤੋਂ पर्दे कर सकते हैं, पर अपने आप तो पर्दा नहीं होना ना। अपने मन की तकलीफ अगर है तो आप ही जानते हो, आप ही महसूस करते हो। Let me give you 3 signs of a very happy and contented person. Of course, I'm not going to say Cadillac and a Rolls Royce car. Of course, seeing me, you can understand. I won't be talking about that stuff. But I'll give you 3 signs which shows that you are totally contented and happy and a successful person. 1, सिराने में सिर्फ वक्त ही नींद आ जाती, जिन्हें ना आती हो हाथ खड़ा कर लो, आती हो तो
अच्छी बात है। अगर सियाने ने सिर रखा तो मस्त नींद सो जाते जैसे 6 महीने का बच्चा सो जाता है, तो जानो तुम सक्सेसफुल। आज सुबह उठते ही आपको सीधे टॉयलेट जाना पड़ेगा, चाय या गर्म पानी या सैर करने की भी जरूरत ना पड़े, तो जानिए आप सक्सेसफुल। और आप अकेले बैठ के अपनी जिंदगी के पुराने किस्से याद करके या आने वाले वक्त के बारे में कल्पना के घोड़े दौड़ा के अगर आंख गीली कर लेते हो और मुंह से आग निकल जाती तो जानना अभी आप सक्सेसफुल नहीं। So what would be the miracle of the life? Miracle of the life would be that you are happy without anybody and you are contented because you have the true knowledge and you have a beautiful smile on your lips all the times. All the times I'm saying, not conditions of life. Not conditions of life. All time and every time. जब तुम मुस्कुरा सकते हो, और अगर सीटी बजा सकते हो तो और भी अच्छी बात है। अगर मुस्कुरा सकते हो और सीटी बजा सकते हो तो जानिए कि आपकी जिंदगी में कुछ प्राप्ति करेंगे। ये मिरेकल तुम्हारी जिंदगी में हो सके, मेरा सारा काम यही है। That's the whole USP of my work, and that is I teach people how to have these 3 signs and symbols of success. और याद रहे, मैं I'm not exaggerating, but I have met trillionaires. I was guest of a person who owned a diamond mine in Tanzania. I was guest, he had a private plane, he took me in a plane and took me to Masai Mara and Ngorongoro, the world's best sanctuaries. In a one day, he took me this, to this flight and got to see all this. लेकिन मैं उसके घर में रही, कोई समंदर किनारे पे उसका 40 कमरे का रिजोर्ट का होटल का उसका घर और 100 लोगों के उसके सर्विस देने वाले उसके नौकर चाकर, बाकी अंदाजा लगा लीजिए। लेकिन उससे ज्यादा दुखी आदमी मैंने कोई नहीं देखा। सब है फिर रो रहे। और जब मैं ऐसे लोगों को देखती हूँ ना तो हमेशा मुझे गुरु नानक साहब की वो पंक्ति याद आती है, मोती का मंदिर उसरे रत्नी का होए जड़ाओ, कस्तूर कुंगु अगर चंदन लीबे आवे चाओ, मत देख पूला बिसरे तेरा चितना आवे ना। ईंट पत्थर नहीं, मोतियों की तेरे घर की दीवारें हों, और जिस पर लीपा पोती किसी पेंट प्लास्टर का नहीं, जिस पर लीपा पोती कुमकुम और केसर और चंदन का हो रहा हो, और जिसके ऊपर हीरे माणिक मोती जड़े हों। परमात्मा भूल गया तो जानना तेरे से ज्यादा दुखी इंसान कोई हो नहीं सकता। जब मैं परमात्मा कहती हूँ तो मैं उस फंडामेंटल एब्सोल्यूट रियलिटी की बात कर रही हूँ, उस एग्जिस्टेंस की बात कर रही हूँ जिसे मैं सत्य कहती हूँ, जिसे मैं चैतन्य कहती हूँ, जो आनंद स्वरूपा है और जो सर्वव्यापक है। मैंने देश काल वस्तु की सीमाएं जिसमें कल्पना से दिखती हैं और काल भी जिसका बच्चा है, उस परमात्मा का स्मरण अगर है, ये चिंतन अगर आपके पास है, ये ज्ञान अगर आपके पास है, तो फिर आप आपके मन से इतना सुख और आनंद पा लेते हैं कि दुनिया की बड़ी से बड़ी और कीमती से कीमती चीज भी आपको फिर ललचा नहीं सकती है। और जिंदगी की ये जो सच्चाई है इसको कोई स्वीकार नहीं करना चाहता, पर सच तो यही है कि जिसने इस अपनी हकीकत को समझ लिया उसकी जिंदगी में सुबह और शाम एक ऐसे रंग से भरी हुई होती है कि अंदर के उस आनंद को वो छलका जाता है। जिसको देख लेता है तो लाइक मिडास का मिडास कहते हैं ना, उसको वरदान मिला था, जिसको छुएगा वस्तु सोने की हो जाएगी। तो मैं ये कहती हूँ कि ये जो आत्मिक ज्ञान है, ये ज्ञान वो कला वो जादू है कि ये इंसान फिर जहाँ बैठता है वही जन्नत है, जिसको छू लेता है फिर वही चंदन है,
और जिसको आंख भर के देख ले फिर वो अपने आप में एक बादशाह बन जाता है. So I don't believe living like a commoner. I always say you are a king. You need to know you are a king and then live like a king. And who is a king? जिसके सामने चीजें आती जाती खत्म हो जाती और वो अपने राजा साहब अपने आसन पर विराजमान रहते हैं. ऐसे ही इस ज्ञान के आसन पर जो बैठ जाता है, इस ध्यान के आसन पर जो बैठ जाता है, ध्यान मतलब वो डुबकी जहां आप आपके अंदर के उस आनंद का स्वाद चखते हो, और ज्ञान कहते हैं उस रोशनी को जो आपको आपकी हकीकत बता देता है और आप ही में वो परमात्मा कैसे छुपा बैठा है ये वो उद्घाटित कर देता है. और इस उद्घाटन हो जाने के बाद क्या मजाल किसी चिंता की पास में भटक जाए. तो ये है चमत्कार जिंदगी का, वो जहां आप इस खूबसूरत दुनिया को देखते हो पर अपने मन में कभी कलह क्लेश तनाव की कालिमा नहीं आने देते हो. तो ये वो चमत्कार है कि तुम्हारे जो लेफ्ट राइट कुछ भी हो रहा हो, ऊपर नीचे कुछ भी हो रहा हो, तो आप उसको, जिसे गुरु नानक साहब कहते थे ना, मर्दानिया वेग रंग करता है, तो फिर आप उस ऊंचे आसन पर बैठ जाते हो जहां जिंदगी के सारे खेल तमाशे देखते हो और अंदर ठहरे रहते हो, मन से शांत रहते हो और मन से बड़े आनंद में रहते हो और मन से बड़े सुखी रहते हो. और अपने आसपास के जो भी इंसान हैं या जानवर हैं, आप उनके जीवन में भी यही ज्ञान की खुशबू को दे देना चाहते हो. ख्याल रहे अगर कोई हमारे सामने रोने लग जाए तो हमारा भी रोना छूट ही जाता है. पूछेंगे बाद में भाई क्यों रो, और बहुत रोते देखे ना किसी को तो हमारा भी रोना छूटता है. ठीक इसी तरह से कोई बहुत जोर से हंस रहा हो तो उसको देख के मुस्कान तो आ ही जाए. पूछते बाद में भाई क्यों हंस रहे हो, कुछ चुटकुला है, कुछ हमें भी बताओ, हम भी थोड़ा हंस ले. लेकिन हंसी कंटेजियस होती है. इस हंसी को जो देखेगा जो सुनेगा वो हंसने लग जाएगा. इसी तरह से दुनिया में कला क्लेश और तनाव में बड़ी कंटेजियस है. सड़े और दुखी लोगों के साथ ज्यादा बैठते रहोगे आप भी वैसे ही हो जाओगे. इसलिए थोड़ी सी संगत किसी ऐसे इंसान से करनी सीखिए जो अपने इस हक, अपने इस सच की मस्ती में जीता है, इस ज्ञान की रोशनी में जीता है. और उस ज्ञान की रोशनी में जीने वाले को ही महात्मा कहते हैं. तो ऐसे महात्मा के साथ जब आप बैठते उठते हैं तो फिर आप सीख जाते हैं यही चमत्कार कि फिर तुम तड़पना भूल जाओ. कबीर साहब बहुत सुंदर कहते हैं कि हमारा प्यारा हमी में है, हमको इंतजारी क्या, जिनका प्यारा बाहर है वो भटकते दए बदर फिरते, जिनका प्यारा बाहर है भटकते वो दए बदर फिरते. हमारा प्यारा हमी में है, हमारा प्यारा हमी में है, हमको इंतजारी क्या, किसकी इंतजार करूं जब हक मेरे अंदर, किसकी इंतजार करूं जब वो सच्चिदानंद मेरे ही भीतर है, किसके लिए तड़पूं क्योंकि अब तड़पने के लिए भी तो कोई दुख होना चाहिए. वो कहते आज मेरी जिंदगी में दुख कोई नहीं है, आज मेरी जिंदगी में परेशानी कोई नहीं. और मैं कहती हूँ ये है बड़ा चमत्कार कि तेरे लेफ्ट राइट कोई रो रहा तो कोई सो रहा पर तुम जाग रहे और अपनी हकीकत में जाग रहे और अपने सच में जाग रहे और अपने उस सच्चे रब से आप इतनी मोहब्बत, इतना प्यार, इतनी अकीदत कर रहे हो कि इस
खुशी और आनंद से भरपूर हो जाने के बाद फिर जब तुम आंख खोल के बाहर देखते हो तो ख्याल रहे ये जलवा जो देखते हो वो उसी का है। ये जलवा जो देखते हो वो उसी का है। ये मुस्कानें जो देखते हो ये भी उसी की है। और ढूंढते फिरते थे जिसको मंदिरों मस्जिदों में तुम, वो तुम ही में बैठा था, ये जानते तुम न थे। और जब तुम जान लेते हो इस रहस्य को और तुम जान लेते हो अपने माइंड को मैनेज करना, अपने मन को मैनेज करना कैसे, सुबह नहाते हो। आई होप एवरीबॉडी टुक देयर बाथ दिस मॉर्निंग, टुक देयर शावर दिस मॉर्निंग। मतलब हम यूरोप में तो रहते नहीं कि नहाए बगैर काम चल रहा है। वहाँ वो फिश परफ्यूम, और जब वो उनकी बदबू के ऊपर वो परफ्यूम आती है ना महाराज, ऐसी जबरदस्त वो सजा होती है, ऐसे यूरोपियन के साथ फिर बैठना। हम लोग नहाते जैसे शरीर से नहाते हैं और ताजा दम हो जाते हैं। तो क्या कभी आपने सोचा कि इस मन को भी स्नान की जरूरत होती है? दिन भर किसी ने कुछ बुरी बात कह दी, कोई तुम्हारे मतलब की बात नहीं की, कोई काम तुम्हारे मतलब का नहीं हो गया, फिर कोई रिश्तेदार उंगली कर गया। रिश्तेदार होते इसलिए, ये उनकी स्पेशलिटी है, वो उंगली करने के लिए ही आते हैं। वो कहते हैं इसे चैन से बैठे हैं क्यों, ऐसे कैसे? So they have this itch in their finger, so they do something, not literally with the finger, but उनकी जुबान ही तलवार जैसी होती, बड़ी मीठी मीठी चल जाती है। तो किसी ने आपको तरसा दिया, किसी ने रुसा दिया, किसी ने अपमान करा दिया, किसी ने सड़ा दिया, किसी ने जला दिया, वैसे आप भी तो जलने को तैयार बैठे होते हो। माफ करिए, अगर तुम तैयार नहीं हो जलने के लिए तो किसी के कहे गए शब्द तुमको जला नहीं सकते। मुझे याद पड़ता है बुल्ले शाह को किसी ने कहा है कुत्तिया, कहने शुक्र मुबारक तेरी जुबान, तेरा दिमाग खराब हो, तुम्हें कुत्ता बोल रहा हूँ। कहते यही तो खोज सोचता हूँ कि मैं अपने गुरु पीर का कुत्ता बन जाऊँ, वफादार वफादार मोहब्बत करने वाला। हाँ, तो बड़ी मुबारक हो तेरी जुबान। कुत्ता बोला, बस अच्छा वाला बन जाऊँ, अच्छी नस्ल वाला बन जाऊँ। थैंक यू वेरी मच। तो जो जलना नहीं चाहता उसको कोई जला नहीं सकता, जो सड़ना नहीं चाहता उसे कोई सड़ा नहीं सकता है। तो माफ करिए, जब आप जलते और सड़ते हैं तो इसलिए नहीं कि किसी ने किया, बल्कि इसलिए क्योंकि तुम खुद तैयार बैठे थे। मार तो पड़े कि मेरे में दुखी होना थोड़ा देर, रोन जी कर। उन्होंने किशोर कुमार के साथ सॉन्ग लगा के कौन कौन रोया? दिल टूट जाए तो किशोर कुमार के साथ सॉन्ग लग जाते हैं, नहीं तो जगजीत सिंह लग जाएगा, शिव कुमार बटालवी गा रहा हो तो सुनते हैं, रोते हैं, सुनते हैं, रोते हैं, बड़ा मजा आता है। किस बात का फिर रो लिया प्यारे, जब तुम जिंदगी हंस के चैन से खुशी से बिता सकते थे, उस जिंदगी को तुम रो रो के बिताते हो, जल जल के बिताते हो, ये भी तो एक बड़ा चमत्कार है। ऐसे कैसे कर लेते हो? ये किसने ट्रेनिंग दे दी तुमको? ये इतनी अच्छी एक्सपर्टीज कैसे हो गई आपकी? इसलिए थोड़ा अपनी सोच के दायरे को बड़ा करिए, थोड़ा सा एक सवाल खुद से भी पूछिए, तुम कौन हो? तुम्हारी हकीकत क्या है? ये शरीर तो इस माँ बाप से पैदा हुआ, तुम किसकी औलाद हो? ये घर इस शरीर का है जहाँ निवास करते हैं आज। पर जब ये शरीर न था तब तुम कहाँ थे? और जिस दिन ये शरीर ना रहेगा तब तुम कहाँ जाओगे? तो कित्थों आया, कित्थे जाना, कित्थे बसिया, कित्थे तेरा ठिकाना, कभी तो विचार ये भी कर लेना चाहिए। तो ये भी एक चमत्कार है कि लेफ्ट राइट मौत घटित होते देखता है पर अपनी मौत के बारे में कभी नहीं सोचा। डॉक्टर खास करके जब वो पेशेंट्स को डील करते हैं, आईसीयू में है, वेंटिलेटर पे है, पूछते हैं क्या होगा मरीज का, तो वो कहते हैं 10% चांस। 10% मतलब एक्चुअली होता है कुछ होने नहीं वाला, तो क्या करें, कोशिश कर रहा है, करते रहते हैं। वो रोज मौत देखता है। हम भी तो अखबार पढ़ते हैं, यहाँ वो मर गया, यहाँ ये हो गया, फ्लड हो गया, अर्थक्वेक हो गया, ये डिजास्टर, वो डिजास्टर, कहीं आग लग गई, कहीं बाढ़ आ गई, कहीं कुछ हो। हम लोग भी पढ़ते हैं, सारी खबरें पढ़ते हैं, सारी खबरें टीवी में सुनते हैं। ये भी एक चमत्कार है कि उसमें हम अपनी मौत के बारे में कभी नहीं सोचते, क्योंकि यूं लगता है कि हम तो आबे हयात पी के आए हैं, हमें तो मरना नहीं है, हम थोड़ी मरेंगे, बाकी दुनिया मर जाएगी। एक
बच्चा अपनी दादी के पास बैठे थे। दादाजी को पिछले हफ्ते मृत्यु हो गई थी। बच्चे ने पूछा दादी दादा किधर है? अब बच्चे को कैसे समझाए, 5 साल का बच्चा। वो कहती बेटा दादाजी तेरे भगवान को प्यारे हो गए, भगवान के पास चले। अच्छा तो दादी तुमको तो प्यारी होगी दादी। उन्हें एक थप्पड़ मारा। भले ऐसे थोड़ी बोलते, बोले तुम्हें तो कहा तुम भगवान को प्यारे हो गए। अच्छा तू मेरे को बता दे मैं भगवान को प्यारा करूंगा। मुझे पकड़ के सीने से लगा दिया, ना ना बेटा ऐसी बात नहीं करती। कहता है इसका मतलब भगवान को प्यारा होना बुरी बात होती है, भगवान बुरी चीज होती है। अब इस बच्चे को मौत की हकीकत ना बताना ये सबसे बड़ा गुनाह। उस मौत से उस बच्चे को ये कहानी एक फैक्चुअल रियलिटी, एक कहानी की तरह भी तो उसको बताई जा सकती है कि जिंदगी बड़ी छोटी है, ईश्वर की वरदान है, ईश्वर की देन है। इसमें एक अच्छा इंसान बनना, अपने आसपास के इंसानों की तुमने ख्याल करनी है, किसी का नुकसान नहीं करना, कि चोरी नहीं करनी, कि डाके नहीं मारने, कि झूठ नहीं बोलने। कि जिंदगी बेटा बड़ी छोटी है और इस जिंदगी को हमने सच्चाई और ज्ञान और प्रेम से भरना है। क्या ये शिक्षा स्कूल से, माँ से, बाप से क्या इस बच्चे को नहीं दी जा सकती? कि जब जिंदगी की ठोकरें पड़े तो वो डोले नहीं, जब जिंदगी के थप्पड़ पड़े तो वो मायूस ना होता फिरे। नंबर कम आए 10वीं के, इतने में बच्चा पंखे के साथ लटक जाता है कि नीट की तैयारी कर रहे हैं और मार्क्स अच्छे नहीं आ रहे हैं। इतनी सी बात से वो अगर अपनी नस काट लेता है तो ये जिम्मेदारी उस इंस्टीट्यूट की है, सरकार की है, या फिर उन माँ बाप की है कि जिन्होंने इस हकीकत से बच्चे का परिचय नहीं कराया कि जिंदगी सिर्फ एक नौकरी ही नहीं होती है, जिंदगी कुछ और भी है। जिंदगी मुस्कान भी है, जिंदगी खुशी भी है, जिंदगी सेवा भी है, जिंदगी किसी की बेनूर आंखों में सर्जरी करा के, कैटरैक्ट की सर्जरी करा के उसकी आंखों में वो रोशनी भरना भी है। जिंदगी ये भी है कि जिसको एजुकेशन नहीं मिल पा रही है, जिसको इलाज नहीं मिल पा रहा है, और तेरे पास मैं छोटी सी एक बात कहना चाहती हूँ। वन खाओ ये गुरुओं की देन है हम सबको, बांट के खाओ। वेद कहता है तुम्हारी कमाई का दशमांश जो है वो दान हो जाना चाहिए, अगर नहीं करते हो तो पाप होगी। 1/10 of your income should go in the public service. 1/10 of your money and time and energy should be given in service of humans, in service of animals, in service to this universe. अब ये सब चीजें अगर स्कूल लेवल पर पढ़ा ली जाए कि पैसा ही सब कुछ नहीं है, कुछ और भी है, इंसानियत भी है, सेवा भी है, ज्ञान भी है, प्यार भी है, मोहब्बत भी है। और कभी तुम्हारा बच्चा कहे कि मुझको नहीं बनना डॉक्टर इंजीनियर और मैं तो शायर बनूंगा, तो वास्ता है तुमको फिर शिव कुमार बटालवी का और गुरमुख सिंह मुसाफिर का, उसे टोकना मत कि एक ही होता है न भी ढंग का काम कर ले। लेकिन तुम्हारा बच्चा कुछ के कहे कि नहीं मेरे को तो सिंगर बनना है, तो फिर सुरिंदर कौर याद कर लेना, आशा सिंह मस्ताना याद कर लेना, और याद कर लेना कि उनके गाए हुए गीतों से तुम्हारी जिंदगी में कितनी खुशियां आई थी। तो जिंदगी में जो सोच के दायरे हैं वो बड़े करने की जरूरत है, और सबसे पहले अपने दिल को खुशी और प्यार और आनंद से भरने की जरूरत है। और फिर उसके बाद ये भर भर के प्याले जो आपके पास है ये दूसरों के लबों तक पहुंच जाने चाहिए। अकेले पीने का क्या मजा, साथ में साथी तो होना चाहिए। मैं वो पीने की बात नहीं कर रही हूँ, मैं लस्सी की बात कर रही हूँ। तो अकेले नहीं पीनी चाहिए, साथ में किसी को पिलानी चाहिए, है ना। तो ज्ञान का अमृत भी अकेले नहीं, वो सबको पिलाना चाहिए, और वो मोहब्बत करना भी अकेले ही नहीं, सबको साथ लेकर के उस खुशबू को फैलाना चाहिए। सो थोड़ा सा ये जो समय है, मैं कहूँगी आधा घंटा में भी, सुबह में या शाम में या रात में, सिर्फ एक आधा घंटा कुछ अच्छे विचार सुनने के ऊपर आप जरूर दीजिए।
और being a Rotarian, you people have taken this responsibility on your shoulders, and I really hope that you take your job very seriously and you be a spear leader to create some beauty, some health, some smiles in the society, because we owe to our society, we owe to all the humanity कि हम खुद भी खुशबाश रहें और ये खुशी हम दूसरों के साथ बांट सकें। मैं ये कहते हुए बहुत खुशी भी महसूस कर रही हूँ और आप सबके बीच में आने के लिए मुझको आपके गवर्नर साहब ने इनवाइट किया। So I'm very thankful to him also. I got a chance to meet all the people, some old, some new, some people who loved already my talks से पहले से ही जुड़े हुए थे, और कुछ फिर वो है कि आपकी आंखों में जो चमक आती है मिलने पर, माने आप हमें देख रहे होते हैं और हम आपका दीदार कर रहे होते हैं, आपको आपके मजे आ रहे होते हैं, हम अपने मजे ले रहे होते हैं। तो ये जो खुशी का अवसर जो मिला इस कन्वेंशन में आने का, मैं बहुत खुशी महसूस कर रही हूँ। और एक आखिर में छोटी सी बात कहना चाहती हूँ कि हम लोग अपने अपने तरीके से कुछ ना कुछ करने की कोशिश करते हैं। जैसे मेरा ट्रस्ट ऋषि चैतन्य ट्रस्ट के अंतर्गत हमने शक्ति मिशन बनाया, तो यहीं अमृतसर से, और यहाँ पर वो लेक्चरर भी बैठी हैं कि जिनकी स्टूडेंट को फीस भरने के लिए मुश्किल हो गई थी, शहजादपुर कॉलेज की स्टूडेंट को, तो मैंने कहा नहीं तेरी फीस मैं भरूंगी कि माँ पैसे नहीं दे सकती। उस एक लड़की से काम जो शुरू हुआ था 2025 में अब तक 30,000 लड़कियों को हम शिक्षित करा चुके हैं, और 5 पॉलिटेक्निकल वोकेशनल सेंटर्स बनाए हैं पूरे देश में, जहां उनको हम अपने पैर पे खड़ा होना सिखाते हैं। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जब एक लड़की खास करके पढ़ लिख के सक्षम हो जाती है, तो उस लड़की के साथ उसका मायका, उसका ससुराल, कम से कम 30-40 लोग तो जुड़ जाते हैं, वो उन सबके लिए बहुत कुछ कर सकती है। इसलिए हर स्त्री को मैं एक शक्ति समझती हूँ, वही शक्ति एक पुरुष में भी है। इन शक्तियों का हम बहुत जो सृजनात्मक जो प्रोसेस है उसको करना चाहिए, उसको बढ़ाना चाहिए। So moving the wheel towards, rotary is a wheel, right? It's a wheel. So let this wheel be rolling and touching millions of people. इतना ही कह के मैं वाणी को विश्राम देती हूँ। And thank you so much for having me. कोई भी ऐसा पहलू नहीं सी कि जड़ा सानू मिरेकल लग रहा सी। मिरेकल उदों लगता है जो साड़ी सोच जी है वो सीमित हो जाती है। मिरेकल उदों होता है जो असी किसी चीज़ को बहुत औखी समझते हैं और सानू मिल जाए, असी अपनी मेहनत के नाल, अपनी मुशक्कत के नाल, अपनी सोच के नाल हर चीज़ को आसान कर सकते हैं। Now I invite Rotarian DDN Anil Singhal ji for the vote of thanks. Anil Singhal, please. In the meantime, I want to announce कि जो election process almost finish हो गया, within 5 minutes जेकर कोई president या electoral जो अभी वोट नहीं उसने डाली, please go and cast your vote. It is going to be closed in the next 5 minutes. 96 कॉन्फ्रेंस ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗੁਰੂ ਮਾਂ रोटरी की कॉन्फ्रेंस से आए सन अविनाश मिंदर जी उस वक्त डिस्ट्रिक्ट गवर्नर साहब, और ये उदों की फोटो आई रिक्वेस्ट अविनाश जी ये अविनाश जी के सिस्टर है ना,
friends, as per our list, 3 clubs are pending. Ludhiana Harmony, if their representatives are in the hall, please move to the election room immediately. Ludhiana Harmony, Rotary Club Jammu, and Hoshiarpur North. I once again repeat, 3 clubs are left. Ludhiana Harmony, Rotary Club Jammu, and Hoshiarpur North. If any of the representative of these clubs are there, please move to the election room. Next 5 minutes, we are going to close the voting and we are going to get the voting box over here. नमस्कार। मालूम है मुझे आप ज्ञान की गंगा में भी गुटके खा रहे हैं, लेकिन नमस्कार का जवाब दे दीजिए। नमस्कार। धन्यवाद डॉक्टर पी.एस. ग्रोवर। मुझ पे आज प्रभु की कृपा हुई आपके माध्यम से कि मुझे कहा गया कि गुरु मां का धन्यवाद करें। दोस्तों, आप मेरे से सहमत होंगे कि हम महापुरुषों का धन्यवाद शब्दों में नहीं, इस अमृत कुंभ में जो हमें ज्ञान की गंगा गुरु मां ने स्नान करवाया, हम अभी तक उसमें चल रहे हैं। और आप इससे सहमत होंगे कि जिन्होंने उस ज्ञान की गंगा में स्नान किया उसी को लाभ होगा, जो किनारे पे बैठ के बहाव देखते रहे शायद उनको उतना लाभ नहीं। एक एक शब्द उनका जो था वो अंदर उतरने वाला है और हम उसका जितना स्मरण करें उसका हमें ही बेनिफिट होगा। गुरु मां ने कहा कि आप प्रोफेसर से प्यार करते हैं, बुक से प्यार करते हैं। अगर हम इनकी जो भी वाणी सुनी, इन्होंने इतना लंबा सफर तय किया आपसे मिलने के लिए, अगर हमने उसे ध्यान से सुना है तभी हमें लाभ होगा। मैं इस जगह पे फिर यही कहूंगा कि गुरु मां सभी की जो पॉजिटिव वाइब्रेशन है वही हम धन्यवाद अर्पित कर सकते हैं, शब्दों में कुछ नहीं कह सकते। एंड आई एम ब्लेस्ड बिकॉज ऑफ माई मदर। निर्मल आश्रम में मुझे इनके साथ में कुछ समय बिताने का कभी काफी वर्ष पहले भी मौका मिला था। और दोस्तों, मैं फिर इस मंच से हमारे डॉक्टर पी.एस. ग्रोवर जी का धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने इस 2 दिन के अंदर हमें अलग अलग पहलुओं में जिस प्रकार से ज्ञान भी दिया, आनंद भी दिया। डॉक्टर साहब, आपका ही बहुत बहुत धन्यवाद और पिता परमात्मा का धन्यवाद। रोटरी डिस्ट्रिक्ट 307 उनकी ओर से एक छोटा सा मेमोरी, एक मोमेंटो वी वुड लाइक टू प्रेजेंट बिफोर यू। I will request RI Director and Sanjeev ji please and Madam please accompany. Dear friends, these are the votes of the election today which we had for our district governor for 26-27. Observer Lalit Khanna is going to hand his box in front of the observers.
to our worthy District Governor, Dr. P.S. Grover. And we'll keep this box in the state till the time counting is done. Grover sir? Ballot box.